So very good evening all the participants. Today we will be starting with part 3. But before we move to part 3, there is one important section which we must look at, and that is section number 2. Why section number 2? Because section number 2, it has made a distinction between two types of individuals. I hope my screen is visible. Is it visible? Amandeep, Yes, sir. Okay. Yes, sir, visible. Okay. So, and you please note that this section 2, it makes a distinction. One is personal guarantors to corporate debtors, right? So, section 2E. And then partnership firms and proprietorship firms and individuals other than persons referred to in clause E. So, what does it mean? That in relation to their insolvency, liquidation, voluntary liquidation or bankruptcy as the case may be. So, if you are an individual, then it has to be seen whether you are a personal guarantor to corporate debtor. So, personal guarantor to corporate debtor is on a different footing than other individuals. So, there are personal guarantors to corporate debtors and there are individuals other than persons referred to in clause E. So, this is very important distinction because rules and regulations relating to personal guarantors to corporate debtors only have been notified, right? So, suppose you are an individual. You might have taken a loan in your individual capacity, right? So, if there is an individual who has taken loan in an individual capacity, just a minute, I think I have to record the session. Or is it being recorded already? It's already recording चल रहा है. Okay. So, if you are an individual, then you might have taken the loan in your individual capacity, or you might have stood as personal guarantor to a corporate debtor. If you are a personal guarantor to corporate debtor, then you can be brought under the ambit of IBC. But if you are an individual, you have taken loan in your individual capacity, then as of now, rules and regulations are not there. Only sections are there. So with this basic understanding, we have to proceed. Understanding this part 3. Now let us go directly to part 3. तो सर इट मींस इंडिविजुअल के केस में अभी ये जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. इंडिविजुअल के केस में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन सेक्शन आपको पढ़ने हैं. अच्छा, उसमें क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन में आएंगे, केस स्टडी भी आ सकती है. सिर्फ ये है कि आप उसके लिए प्रोसीजर नहीं है. केस लॉज फिर नहीं होगा, क्योंकि कोई केस लॉ नहीं होगा नेचुरली. जब प्रोसीजर ही नहीं है, एप्लीकेशन ही फाइल नहीं हो सकती, तो केस लॉ नहीं है. लेकिन सेक्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चंस भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगे. ओनली इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट गारंटर है वही इसमें कवर होंगे CIRP में. हाँ, यहाँ पार्ट 3 में. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. कंट्रोल में इंडिविजुअल में आ रहा है 465. Okay. So now we'll start with section 78, right? I hope it is visible on my screen. Section 78. What section 78 says? It says this part. So it says this part shall apply to matters relating to fresh start, insolvency and bankruptcy. ठीक है? कौन कौन से प्रोसेस है? फ्रेश स्टार्ट है, इंसॉल्वेंसी है और बैंक्रप्सी. ये 3 प्रोसेसेस हैं पार्ट 3 में. और पार्ट 2 में कौन कौन से प्रोसेसेस थे?
पार्ट 2 में हमने कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा CIRP, ठीक है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 32A। उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विडेशन, सेक्शन 33 टू 54। उसके बाद में पढ़ा हमने फास्ट ट्रैक, सेक्शन 55 टू सेक्शन 58। उसके बाद में हमने पढ़ा वॉलंटरी लिक्विडेशन, सेक्शन 59। और एक बीच में हमने पढ़ा प्रीपैक, सेक्शन 54A टू 54P। ठीक है, ये पढ़े हमने। 5 प्रोसेसेस हमने पढ़े पार्ट 2 में, और 3 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप। लेकिन इसके साथ में हमारे को सेक्शन 2 भी ध्यान में रखना है। सेक्शन 2 क्या बोलता है? पर्सनल गारंटर्स अलग है, इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स अलग है। पर्सनल गारंटर्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस आ चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस आर येट टू कम। लेकिन सेक्शन पढ़ने हैं, केस स्टडी भी आ सकती, ठीक है। Provided that the central government, this part shall apply to matters relating to fresh start, insolvency and bankruptcy of individuals and partnership firms where the amount of the default is not less than 1000 rupees. तो यहाँ पर amount of default कितना है? 1000 rupees or more. Provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 lakh rupees. ठीक है, section 79 डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें देख लेते हैं हम लोग, एंड देन वील मूव टू फ्रेश स्टार्ट। सर अभी डिफॉल्ट की लिमिट क्या है? डिफॉल्ट लिमिट है 35,000? नहीं, डिफॉल्ट की लिमिट 1000 है। 1000 हाँ 1000, यस। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेज इट अप टू, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अगर चाहे तो 1 लाख तक बढ़ा सकती है। जैसे अगर हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं, सेक्शन 4 में क्या लिखा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 1 लाख, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज इट टू 1 करोड़। तो वहां पर उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। यहां पर अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये तो सर बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें हाँ, इसीलिए तो अभी नोटिफाई नहीं किया ना, इसीलिए अभी। अब आप पूछिए, अगर कोई फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन लगाना चाहे आज की डेट में नहीं लगा सकता, क्योंकि फॉर्म ही नहीं है। प्रोसीजर तो देना पड़ेगा ना, सेक्शन तो बना दिया लेकिन प्रोसीजर नहीं है, जो उसकी मशीनरी है वो नहीं पड़ेगी। 35,000 इज वेरी लेस। इसमें तो क्या है, एक मोबाइल भी नहीं आता। हाँ जी, सेक्शन बस देखिए, पर जो लॉ है वैसे ही पढ़ना है हमारे को। सेक्शन 79 डेफिनेशंस। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एडजुड। अब देखो, ये देखिए मेन बात क्या लिखी, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहां पर आता है? सेक्शन 179 में। अभी जो लास्ट क्लास थी हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 60 हैज टू बी रेड विद सेक्शन 179। सेक्शन 60 में क्या है? एनसीएलटी है, और वो बोलता है पर्सनल गारंटर्स के लिए भी एनसीएलटी। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल्स के लिए डीआरटी है। तो पर्सनल गारंटर्स के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एनसीएलटी है ना। हमने सेक्शन 60 में भी पढ़ा, और सेक्शन 60 हमारे को, और क्योंकि 179 जो है, अगर जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो 179 क्या बोलता था? सब्जेक्ट टू सेक्शन 60। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी है। यहां पर कॉन्सेप्ट आती है एसोसिएट की। ठीक है, इन पार्ट 2 वी हैव रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी, बट हियर द कॉन्सेप्ट इज ऑफ द एसोसिएट, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, वहां कॉर्पोरेट एंटिटीज है पार्ट 2 में, यहां नॉन कॉर्पोरेट है। एसोसिएट ऑफ द डेटर मींस ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर। ठीक है, अगर इमीडिएट फैमिली में है, अब इमीडिएट फैमिली की डेफिनेशन क्या है? इमीडिएट फैमिली का क्या मतलब है? इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर मींस हिज स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक, अब आप ये देखिए, स्पाउस के बारे में डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, डिपेंडेंट वर्ड किसके साथ यूज किया? चिल्ड्रन या पेरेंट्स के साथ। मतलब स्पाउस चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, इमीडिएट फैमिली में कवर होगा। लेकिन चिल्ड्रन या पेरेंट्स तभी कवर होंगे अगर वो डिपेंडेंट है।
अगर चिल्ड्रन या पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है तो फिर वो इमीडिएट फैमिली में नहीं आए। ठीक है, ये ध्यान में रख। ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव ऑफ द डेटर और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर। ठीक है, अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव की डेफिनेशन ये लिखी है आपकी रूल 4 सेक्शन 524A में, रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव की डेफिनेशन ये मेंबर्स ऑफ HUF, हस्बैंड वाइफ फादर मदर, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, रिलेटिव तो जो दो अपना कॉर्पोरेट वाले में रिलेटिव का डेफिनेशन था वो भी सेम इसी में हाँ होगा वो ना? भी सेम है, वो भी सेम। हाँ हाँ, वहां पर भी वही। ठीक है, तो रिलेटिव किसका? डेटर या रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर। अब आप कहोगे डेटर कौन है? डेटर की डेफिनेशन क्या दे रखी है? डेटर इंक्लूड्स ए जजमेंट डेटर, इतना ही लिखा। ठीक है, डेटर बेसिकली द पर्सन हु हैज टेकन द डेट, आप ऐसा समझ। ए पर्सन हु इज इन पार्टनरशिप विद द डेटर, ए पर्सन हु इज ए स्पाउस और रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन विद whom द डेटर इज इन पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनर है तो पार्टनर की स्पाउस या उसका रिलेटिव वो भी आपका एसोसिएट में आ जाएगा। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयर ऑफ द डेटर और एम्प्लॉय ऑफ द डेटर, ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट in which the beneficiaries of the trust include a debtor, or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. A company where the debtor, तो बेसिकली एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड, मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल। और रिलेटिव क्या है? इफ दे आर मेंबर्स ऑफ HUF और वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रूल 4 है, सेक्शन 524 है, जिसमें बहुत सारे रिलेशंस दे रखे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन 79 में जो डेफिनेशंस हैं ये पूरे पार्ट पर एप्लीकेबल है। अब इसमें 3 प्रोसेसेस हैं, फ्रेश स्टार्ट है, इंसॉल्वेंसी है और बैंक्रप्सी है। हमारा इमीडिएट कंसर्न क्या है? हमारे को फ्रेश स्टार्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड डेफिनेशन जब हम इंसॉल्वेंसी करेंगे तब पढ़ लेंगे, और बैंक्रप्सी से रिलेटेड जब डेफिनेशंस जब बैंक्रप्सी करेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम इसमें देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है? एक तो है एक्सक्लूडेड एसेट्स। एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या है? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां हम लोग इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी, अब इंडिविजुअल अगर किसी के पैसे नहीं दे पाता तो क्या उसके घर के बर्तन भी उठा के ले जाएंगे? क्या उसका सोफा भी ले जाएंगे? क्या उसकी कार भी ले जाएंगे? ये बातें इसके अंदर लिखी। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या है? सबसे पहली बात क्या लिखा है? अनएनकम्बर्ड। अगर आपने लोन लिया है तो जरूर ले जाएंगे। अगर आपने फ्रिज लिया हुआ और फ्रिज के किस्त में लोन लिया हुआ है, फ्रिज आप लोन की किस्त नहीं चुका रहे तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन अगर अनएनकम्बर्ड है, unencumbered tools, books, vehicles and other equipment as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business or vocation. Unencumbered furniture, household equipment and provisions as are necessary for satisfying the basic domestic needs of the bankrupt and his immediate family. Immediate family का definition हमने पढ़ लिया। Any unencumbered personal ornaments of such value as may be prescribed of the debtor or his immediate family which cannot be parted with in accordance with religious usage. ठीक है, और यहां पर वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है 1 लाख। Any unencumbered life insurance policy or pension plan taken in the name of the debtor or his immediate family. An unencumbered single dwelling unit owned by the debtor of such value as may be prescribed. तो यहां पर वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है 10 लाख रुपए रूरल एरिया में और 20 लाख अर्बन एरिया। तो ये एक्सक्लूडेड एसेट्स, बेसिक बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी डिटेल जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना बेसिक बात, एक बेसिक फंडा ध्यान में रखना चाहिए
हियर वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स। तो देयर में भी पहली बात कि लोन नहीं होना चाहिए। लोन होगा तो कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर लोन नहीं है तो जो पर्सनल यूज की चीजें हैं, फर्नीचर है, व्हीकल है, बुक्स है, पर्सनल ऑर्नामेंट्स है, कोई LIC पॉलिसी है या ड्वेलिंग यूनिट है, तो उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक्सक्लूडेड डेट है। एक्सक्लूडेड डेट के पीछे फंडा क्या है? एक्सक्लूडेड डेट में ऐसे डेट आते हैं, बेसिकली वो ये कहता है कि भाई आपकी इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे बैंक्रप्सी हो जाए, आप जिंदा तो रहोगे, आप कमाओगे तो सही, तो ये वाले फाइन तो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आपका फ्रेश स्टार्ट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो भी एक्सक्लूडेड डेट से आप फारिग नहीं हो सकते। कौन से? लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। क्योंकि एक्सक्लूडेड डेट के साथ में एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्वालिफाइंग डेट की। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशंस को मिला करके हमारे को पढ़ना चाहिए। एक तो है एक्सक्लूडेड डेट और एक है क्वालिफाइंग डेट। आप डिस्चार्ज किससे होते हो? क्वालिफाइंग डेट से। एक्सक्लूडेड डेट से कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, पर्टिकुलरली जब हम पहले प्रोसेस की बात करेंगे, फ्रेश स्टार्ट। तो एक्सक्लूडेड डेट में क्या है? लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, liability to pay damages for negligence, nuisance or a breach of a statutory, contractual or other legal obligation, liability to pay maintenance to any person under any law for the time being in force, liability in relation to a student loan and any other debt as may be prescribed. ठीक, अच्छा, और एक है हमारा क्वालिफाइंग डेट। ये क्वालिफाइंग डेट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा एक्सक्लूडेड डेट और एक है क्वालिफाइंग डेट। क्वालिफाइंग डेट क्या है? बेसिकली जिससे आप डिस्चार्ज हो सकते हो। क्या मतलब? क्वालिफाइंग डेट मींस एनी अमाउंट ड्यू which includes interest or any other sum due in respect of the amounts owed under any contract by the debtor for a liquidated sum either immediately or at a certain future time and does not include an excluded debt। तो excluded debt जो है वो क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगा। एक्सक्लूडेड डेट हमने पढ़ लिया, बेसिकली जिसमें कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, है ना? कोई स्टूडेंट लोन ले रखा है आपने, कोई मेंटेनेंस देना है, कोई डैमेजेस है या कोर्ट का फाइन है ना? तो वो एक्सक्लूडेड डेट में आते हैं, जिससे आपका कभी भी छुटकारा नहीं है। और क्वालिफाइंग डेट क्या है? क्वालिफाइंग डेट है वो, इसमें एक्सक्लूडेड डेट शामिल नहीं है, या डेट टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड। आपने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो वो भी क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगा। ठीक है, एंड any debt which has been incurred 3 months prior to the date of application for fresh start process। मतलब आपने कोई 3 महीने पहले डेट लिया है prior to the date of application for fresh start process, तो वो भी आपका क्वालिफाइंग डेट्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को लेनी है। और रेजोल्यूशन पर बाकी डेफिनेशन हम जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लेंगे। Resolution professional means an insolvency professional appointed under this part as a resolution professional for conducting the fresh start process or insolvency resolution process। यहां पर कोई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस के लिए हो गया, फ्रेश स्टार्ट और इंसॉल्वेंसी। अब आप कहोगे बैंक्रप्सी के लिए क्या है? तो बैंक्रप्सी के लिए यहां पर वर्ड है बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, तो bankruptcy trustee means the insolvency professional appointed as a trustee for the estate of the bankrupt under section 125। तो यहां दो कॉन्सेप्ट है, आरपी और बैंक्रप्सी ट्रस्ट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मेजर मेजर डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं, पहला प्रोसेस इसमें आता है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ये फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक आदमी है जो बिल्कुल ही जिसके पास कुछ है ही नहीं, है ना? अगर उसके अगेंस्ट में आप लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर लोगे तो भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाहर में कॉन्सेप्ट आती है, फॉरेन में एक पॉपर की कॉन्सेप्ट है ना? तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर लेके आई। और इसमें एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? डेटर ही एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, जैसे प्रीपैक प्रोसेस है, प्रीपैक में भी डेटर ही एप्लीकेशन लगा सकता है ना? और यहां पर फ्रेश स्टार्ट में भी एक डेटर ही एप्लीकेशन लगा सकता है, क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता।
लेकिन डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन लगा पाए। ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट and fulfills the conditions specified in subsection 2 shall be entitled to make an application for a fresh start for discharge of his qualifying debt under this chapter। तीन चार बातें बोली। पहला, अनेबल टू पे हिज डेट्स, डेट कितना है मिनिमम 1000, ठीक है, और कुछ कंडीशंस दे रखी है सबसेक्शन 2 में, और डिस्चार्ज किससे होगा, क्वालिफाइंग डेट से। अब क्वालिफाइंग डेट क्या है, क्वालिफाइंग डेट हमने पढ़ा था, क्वालिफाइंग डेट में क्या शामिल नहीं है, एक तो एक्सक्लूडेड डेट शामिल नहीं है। मान लीजिए अगर उसने कोर्ट का फाइन देना है तो उससे डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर कोई सिक्योर्ड लोन है उससे डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर उसने पिछले कोई 3 महीने के अंदर कोई लोन ले लिया है तो उससे डिस्चार्ज नहीं, ठीक है। ए डेटर में अप्लाई आइदर पर्सनली और थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, पर्सनली भी अप्लाई कर सकता है और थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर ए फ्रेश स्टार्ट अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट्स, क्वालिफाइंग डेट्स के बारे में, ठीक है। टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ, पहली कंडीशन, जो ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द डेटर इट डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज, ठीक है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। अगर हम ग्रॉस एनुअल इनकम को देखें तो ग्रॉस एनुअल इनकम में ये कहीं पर अभी तो रूल्स वगैरह तो आए नहीं है, तो इसीलिए अब एनुअल इनकम आप क्या समझोगे, एनुअल इनकम आप समझोगे जो पिछले 12 महीने में उसकी इनकम, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि पिछले 12 महीने की इनकम आप देखो। दूसरा, एग्रीगेट वैल्यू, ये एग्रीगेट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी एक्सक्लूडेड एसेट्स, ठीक है, और एक यहां पर क्या है, यहां लिखा है क्वालिफाइंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर, ठीक है। तो टोटल, चाहे वो एक्सक्लूडेड एसेट्स हो चाहे कुछ हो, सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक। तीसरा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स डज नॉट एक्सीड 35,000 रुपीज, यहां पर क्या लिखा, क्वालिफाइंग डेट्स। अब क्वालिफाइंग डेट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, सिक्योर्ड लोन इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड डेट्स, एक्सक्लूडेड डेट, जो और डेट लास्ट 3 महीने में लिए वो, हाँ वो इंक्लूडेड नहीं। और एक है सर, एक और था, और उसमें है जो सिक्योर्ड वाले, हाँ बिल्कुल, 3 नहीं है, ठीक। ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए, नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट, डज नॉट ओन ए ड्वेलिंग हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अनकम्बर्ड और नॉट, ठीक है, इसके पास मकान भी नहीं होना चाहिए। और फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, यूनिट क्या होती है, ड्वेलिंग यूनिट क्या होती है? ड्वेलिंग यूनिट घर मतलब रेजिडेंस, जहां पर रहते हैं आप, हाँ। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, क्या लिखता है, ही डज नॉट ओन ए ड्वेलिंग हाउस, ओन का मतलब क्या हुआ, खुद ओन का का नहीं मतलब है। उसकी ओनरशिप नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है फैमिली का घर हो, है ना, तो फैमिली का घर इसमें नहीं आएगा। ओन वर्ड क्या लिखा, ओन, ओन ए डज ड्वेलिंग, नॉट ओन। उसके पास नहीं होना चाहिए। A fresh start process, insolvency resolution process or bankruptcy process is not subsisting against him, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड इन रिलेशन टू हिम इन द प्रीसीडिंग 12 months ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट। 12 महीने कब से काउंट करने हैं, ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन लगाई, उसका ऑर्डर हो गया, तो फिर 12 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपने एक एप्लीकेशन लगाई और आपने एप्लीकेशन लेकिन विड्रॉ कर ली, है ना, भाई किसी भी प्रोसेस में विड्रॉल तो हो ही सकता है, तो अगर आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली तो दोबारा आप लगा सकते हो या नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो उस केस में आप लगा सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर नहीं हुआ। वर्ड क्या लिखा, ऑर्डर, ऑर्डर होना चाहिए, अगर ऑर्डर हो गया तो फिर 12 महीने तक आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते,
ठीक है, मतलब ये बहुत ही भूखा रंग का आदमी है ना। सालाना इनकम उसकी डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज, aggregate value of the assets does not exceed 20,000 rupees, aggregate value of the qualifying debt does not exceed 35,000 rupees। तो मोटी मोटी बात ये ऐसे ध्यान केसेस रखनी। होते भी हैं, ऐसे केसेस होते भी हैं। हाँ, क्यों नहीं होते, जैसे बाहर में भी तो होते हैं ना, बहुत गरीब लोग भी तो होते ही है ना। ऐसा है ना, ये पॉलिटिकल लीवे के लिए रख दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स है ना, इस टाइप के लोग हैं जो किसी वजह से इम्प्लीकेट हो गए इस प्रोसेस में, तो उनको उनके लिए ये किया अच्छा। है। इसीलिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देगी कि भैया माइनिंग वर्कर्स ये वो, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सेक्शन 81, सेक्शन 81 क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 80 बाय ए डेटर, एप्लीकेशन फाइल कर दे तो क्या होगा? इंटरिम मॉरेटोरियम शैल कमेंस। एक कॉन्सेप्ट यहां पर आती है, इंटरिम मॉरेटोरियम। ये जो पार्ट 3 है, इसमें सारे प्रोसेसेस में, चाहे आपका फ्रेश स्टार्ट हो, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, चाहे बैंक्रप्सी हो, यहां पर इंटरिम मॉरेटोरियम की कॉन्सेप्ट आती है। इट शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन। तो फाइलिंग के बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, जबकि वहां CIRP या फ्रेश स्टार्ट वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। वहां इंटरिम मॉरेटोरियम नहीं होता, जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है उसके बाद ही मॉरेटोरियम लगता है। यहां यस पर क्या सर। है, यहां जब एप्लीकेशन फाइल हो गई तभी इंटरिम मॉरेटोरियम लग जाए। ठीक है, in relation to all the debts and shall cease to have effect on the date of admission or rejection of such application as the case may be। और इंटरिम मॉरेटोरियम कब खत्म हो जाएगा? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन। भाई दो ही बातें होंगी, या तो एडमिशन होगा या रिजेक्शन होगा। अगर एडमिशन होगा तो प्रॉपर मॉरेटोरियम लग जाएगा, मॉरेटोरियम। ठीक है, तब तक इंटरिम। ठीक है, ये और बात ध्यान में रखनी है। ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड, एनी लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। अगर कोई भी लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस पर स्टे लग जाएगा। एंड नो क्रेडिटर शैल इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट। ठीक है, तो पहली बात, पेंडिंग अगर कोई है तो स्टे लग जाएगा, और नया इनिशिएशन हो नहीं सकता। लेकिन क्या लिखा? इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। मान लो ये किसी का सिर फाड़ दे तो लीगल प्रोसीडिंग हो जाएगी ना। तो बार किस पर है? इन लीगल रिस्पेक्ट एक्शन ऑफ और दैट प्रोसीडिंग पर्टिकुलर डेट। इन वो रिस्पेक्ट डेट ऑफ पे सच, है। डेट से रिलेटेड होना चाहिए, तो नहीं हो सकते। बाकी अगर कोई मतलब ऐसा कुछ कम कर देगा तो हो ही सकते। ठीक है, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 शैल बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकॉम्पनीड बाय सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो क्या कुछ प्रेस्क्राइब्ड है? अभी आंसर इज नो, अभी कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ठीक, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 shall contain the following information supported by an affidavit, नेमली, इसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना है। क्या होगा उसमें? लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द रिटायर as on the date of the said application along with details relating to the amount of each debt, interest payable thereon and the names of the creditors to whom each debt is owed। अब आप ये देखिए, यहां पर क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स। ठीक है, जितने भी डेट है सबकी डिटेल्स इसको देनी है। जबकि हमने सेक्शन 80 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 80 में पढ़ा था कि फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर किसके लिए होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट्स। तो ऑर्डर तो होगा क्वालिफाइंग डेट्स के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स की डिटेल नहीं देनी, उसको सारी सारे डेट्स की डिटेल देनी है। मतलब चाहे उसने डेट पिछले 3 महीने में लिया हो, क्वालिफाइड। चाहे सिक्योर्ड लोन हो, चाहे एक्सक्लूडेड डेट हो, सबकी डिटेल उसको यहां देनी है। ठीक है, सर फी हाँ कितनी बोलिए, होगी इसमें? वॉइस तो क्रैक हो रही है। एज में बी प्रिस्क्राइब। फी फी एप्लीकेशन फी कितनी होगी इसमें? एप्लीकेशन फीस अभी है नहीं ना, एप्लीकेशन अभी फीस अभी है। प्रेस्क्राइब्ड, अभी प्रेस्क्राइब्ड होगी। रूल मैंने बताया ना, रूल रेगुलेशन नहीं आए हैं। तो अभी अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहो तो एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते, सिर्फ सेक्शन पढ़ सकते हो आप। ठीक है जी, हाँ। तो लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द डेटा एज ऑन द डेट ऑफ द सेड एप्लीकेशन अलोंग विद इट। लेकिन
इसकी केस स्टडी भी आ जाती है, ऐसा नहीं कि केस स्टडी नहीं आ सकती, केस स्टडी कई बार आई है इस पर, तो सर सेक्शन में से पढ़ाई क्वेश्चन क्यों बना रहे देगा हैं वो। जब एप्लीकेबल ही नहीं है, अभी तो पढ़ाई जा रहे हैं हम लोगों को ऐसे ही। नहीं ऐसा है, सेक्शंस तो है ना जी, सेक्शन तो है, सेक्शन तो पढ़ने ही ना आपको, ऐसे सर बहुत सारे हैं। जब तक एप्लीकेशन का टाइम आएगा तब तक हम भूल जाएंगे, फिर पढ़ने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बेसिक बातें तो ध्यान में रहती हैं, ऐसी बात नहीं, एक बार पढ़ लो तो बेसिक बातें तो ध्यान में रहती हैं बंदे को, थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो फटाफट याद आ जाता है फिर, ये बात। ठीक है जी। तो पहली बात क्या क्या ध्यान में रखना है, लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स, सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स नहीं, ऑल डेट्स, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डेट्स एंड द रेट देयर ऑफ स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है किसकी, डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक, up to 2 years prior to the date of the application. Particulars of the debtor's personal details as may be prescribed. Reasons for making the application. Particulars of any legal proceedings which to the debtor's knowledge has been commenced against him. The confirmation that no previous fresh start order under this chapter has been made in respect of the qualifying debts of the debtor in the preceding 12 months of the date of the application. ठीक है, तो ये तो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर किसका होगा, ये यहां पर क्लियर कर दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स ऑफ द डेटर। तो ये आपको एप्लीकेशन लगानी है एक एफिडेविट के साथ में। नाउ सेक्शन 82, सेक्शन 2 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द रिटायर थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डायरेक्ट द बोर्ड विद इन 7 days of the receipt of the application and shall seek confirmation from the board that there are no disciplinary proceeding against the RP who has submitted such application. ठीक है, और बोर्ड कम्युनिकेट करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी regarding confirmation of the appointment of the RP or rejection of the appointment of the RP who filed an application and nominate a resolution professional suitable for the fresh start process. ठीक, मतलब ये दोनों तरह से एप्लीकेशन लगा सकता है, थ्रू आरपी भी और अपने आप भी। अगर आप इसने अपने आप एप्लीकेशन लगाई है, नॉट थ्रू आरपी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से 7 दिन में पूछेगी और बोर्ड नॉमिनेट कर देगा विद इन 10 days। ठीक, चलिए। सर इन केस अगर वो खुद ही लगाता है एप्लीकेशन, तो इन दैट केस बोर्ड उनके लिए अपॉइंट करेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी, बोर्ड के पास डेटा है ना। हाँ। और होता क्या है इन प्रैक्टिस, होता यह है कि दोनों के पास पैनल रहता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी पैनल रहता है जो बोर्ड शेयर करता है, तो उसी में से अपॉइंटमेंट हो जाती है। ओके, ठीक है। A resolution professional appointed by the adjudicating authority under subsection 1(5) shall be provided a copy of the application for fresh start। ठीक है, उसको कॉपी दे देंगे एप्लीकेशन। सेक्शन 83, अब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस हमने पढ़ने, फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, सब में रिपोर्ट की कॉन्सेप्ट है, क्यों यहां हम रेजगारी से डील कर रहे हैं, अभी तो 1000 की लिमिट है, 1 लाख तक हो जाएगी तो भी कोई ज्यादा नहीं है ना। तो यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पहले ये रिपोर्ट आरपी देता है, अभी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80 विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आइदर रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, पार्ट 2 में भी कोई ऐसा प्रोसेस है क्या कि जिसमें आरपी रिपोर्ट देता है? पार्ट 2 में, ये तो पार्ट 3 हो गया, तो पार्ट 2 में भी ऐसा कोई प्रोसेस है क्या कि जिसमें आरपी रिपोर्ट देता है? पार्ट 2 में 5 प्रोसेस हैं, तो कोई ऐसा प्रोसेस है क्या अमनदीप कौर जी, एनी आइडिया? वहां पर प्री पैक एक प्रोसेस है ऐसा, हाँ प्री पैक में, तो यस प्री पैक सर, में 54B है जिसमें P8 फॉर्म के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ती यस सर। है। ठीक, तो यहां पर क्या आ गया, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80 विद इन 10 days of his appointment and submit a report to the adjudicating authority
either recommending acceptance or rejection of the application. ठीक. The report referred to in subsection 1 shall contain the details of the amounts mentioned in the application, which in the opinion of the resolution professional are qualifying debts. देखो, जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसको तो पता नहीं है कि कौन से क्वालिफाइंग डेट्स है, इसलिए उसने तो सारे डेट्स की डिटेल दे दी, है ना. अब इसको पता है आरपी को कि कौन से क्वालिफाइंग डेट्स है, कौन से नहीं है ना. तो ये क्वालिफाइंग डेट्स को अलग से डिटेल उसकी बनाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज किसका होना है, सिर्फ क्वालिफाइंग डेट से. जो एक्सक्लूडेड डेट है उससे तो डिस्चार्ज होना नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या लिखा था हमने सेक्शन 80 में, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट्स. ठीक. तो ये क्या रिपोर्ट बना रहा है, ये रिपोर्ट बना रहा है कि क्वालिफाइंग डेट्स कौन से हैं जिससे ये डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. एक्सक्लूडेड डेट्स तो फिर भी देने पड़ेंगे. एंड लाइबिलिटी इज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92. The resolution professional may call for such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or any other person who in the opinion of the resolution professional may provide such information. ठीक है. The debtor or any other person, as the case may be, shall furnish such information or explanation within 7 days of receipt of the request. तो 7 days यहाँ पर important है. The resolution professional shall presume that the debtor is unable to pay his debts at the date of the application if, in his opinion, the information supplied in the application indicates that the debtor is unable to pay his debts and he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete, and he has reason to believe that there is no change in the financial circumstances of the debtor since the date of the application enabling the debtor to pay his debts. क्या देखना है इसने, सबसे पहले तो ये देखना है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है कि नहीं, कि भाई वेदर इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, और उसको लगता है कि भाई ही हैज नो रीजन टू बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इज इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, और फिर कोई चेंज भी नहीं हुआ है सिंस द डेट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है. The resolution professional shall reject the application if in his opinion the debtor does not satisfy the conditions specified under section 80. 80 में जो दे रखी हैं 60, 20, 35, और the debts disclosed in the application by the debtor are not qualifying debts. ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इसमें क्वालिफाइंग डेट कुछ हो ही नहीं, सारे ही आपके सिक्योर्ड डेट हो, है ना, या फिर 3 महीने पहले आपने लिया हो डेट, तो फिर उस केस में जो है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज किससे होना है, क्वालिफाइंग डेट से. अगर क्वालिफाइंग डेट कोई है ही नहीं, डेट तो है लेकिन कोई भी उसमें से क्वालिफाइंग डेट नहीं है, तो फिर भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी. और द डेटर हैज डेलिबरेटली मेड ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन इन द एप्लीकेशन और विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन सबमिटेड. ठीक है. The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report to the adjudicating authority under subsection 1 and shall give a copy of the report to the debtor. दोनों के लिए रीजन देने हैं, एक्सेप्टेंस का भी और रिजेक्शन का भी, और इसकी कॉपी किसको देनी है, डेटर. ठीक है. नाउ सेक्शन 84, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज का यूजुअल पीरियड है. ठीक है. तो वो क्या करेगी, या तो एडमिट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. रिजेक्ट करने के पहले 7 days टाइम देगी. हाँ वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल, Okay. वो तो हमेशा होता है. द ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन शैल स्टेट द अमाउंट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज क्वालिफाइंग डेट्स बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इस ऑर्डर के अंदर ही लिख दिया जाता है कि भाई कितना अमाउंट इसने एक्सेप्ट किया है qualifying debts and the other amounts eligible for discharge under section 92 for the purpose of the fresh start order. A copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 1 along with the copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application within 7 days of passing of the order. ठीक है. और इस ऑर्डर की कॉपी along with the copy of the application किसको देनी है, जो क्रेडिटर्स है mentioned in the application within 7 days of passing of the order. अब आप कहोगे क्रेडिटर्स को क्यों कॉपी देनी है, क्योंकि
अगर वो क्वालिफाइंग डेट है उससे तो नहीं डिस्चार्ज हो रहा है ना। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह रही है तुम जाओ मौज लो, तुमने किसी का पैसा देना नहीं है, क्योंकि वैसे ही तुम भूखे नंगे, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो है नहीं, है ना। तो हम कोर्ट केस भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम्हारी इंसॉल्वेंसी शुरू कर देंगे, बैंक्रप्सी कर देंगे, तो भी कुछ नहीं मिलना, है ना। क्योंकि तुम्हारे पास इनकम ही नहीं है, सालाना 5,000 रुपये महीना तो तुम कमा ही रहे हो, 20,000 के टोटल एसेट्स है तुम्हारे पास, तो तुम दे ही नहीं पाओगे। इसलिए ये जो क्रेडिटर्स है उनको भी कॉपी दी जाती है, ताकि अगर क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो अपील फाइल कर सके, वो ये कह सके भाई हमारा क्वालिफाइंग डेट नहीं है, ये तो एक्सक्लूडेड डेट है ना। इसलिए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन किसको दी जाती है, जो भी क्रेडिटर्स है जिसका नाम एप्लीकेशन में मेंशन है, और इसने सारे क्रेडिटर्स का नाम मेंशन इसमें करना है ना। ये हमने पढ़ ही लिया कि एफिडेविट जब ये देगा एप्लीकेशन के साथ में, एफिडेविट में लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द डेटर एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद डिटेल्स रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ ईच डेट, इंटरेस्ट पेबल देयरऑन एंड द नेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स टू हुम ईच डेट इज ओड। तो पूरी लिस्ट लगा रहे, ठीक है। तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया तो उसने क्या किया कि इसकी कॉपी क्रेडिटर्स को भी दे दी। नाउ सेक्शन 85, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मॉरेटोरियम पीरियड शैल कमेंस। अब यहां पर मॉरेटोरियम स्टार्ट होगा, पहले क्या था, इंटरिम। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मॉरेटोरियम पीरियड शैल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेट्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली क्या लिखा है, ये जो मॉरेटोरियम है इट शैल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स के लिए मॉरेटोरियम हुआ है, सारे डेट्स के लिए। मतलब अगर कोई सिक्योर्ड लोन भी है तो भी एक्शन नहीं ले पाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, जब तक ये मॉरेटोरियम चलेगा। ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड and subject to the provisions of section 86, the creditors shall not initiate any legal action or proceeding in respect of any debt। ठीक है, अब 86 में क्या लिखा है, 86 में लिखा है अगर क्रेडिटर का नाम, क्रेडिटर को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लीगल एक्शन या प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, 86 अब पढ़ेंगे हम। और ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड द डेटर शेल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी or directly or indirectly take part in or be concerned in the promotion, formation or management of a company, not dispose of, ये कुछ restrictions है, ठीक है, not dispose of or alienate any of his assets, inform his business partners that is undergoing a fresh start process, be required to inform prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be notified by the central government either individually or jointly that is undergoing a fresh start process. Disclose the name under which he enters into business transactions if it is different from the name in the application admitted under section 84। मतलब हो सकता है एप्लीकेशन या इंडिविजुअल नाम से लगाई हो और वो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा हो, है ना, तो वो भी नाम इसको डिस्क्लोज करना। नॉट ट्रेवल आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, द मॉरेटोरियम सीजेस टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 days। तो यहां पर ये पीरियड कितना है, 180 days beginning with the date of admission unless the order admitting the application is revoked under subsection 2 of section 91। ठीक है, now section 86। अब आप कहोगे पैसे तो इसके पास 20,000 है, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि भाई बाहर भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब मैं बोलने ही वाली थी सर, ये बात मैं बोलने ही वाली थी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना भाई, उसकी फैमिली के पास पैसे हो, फैमिली मान लो बुला रही है ना, तो उस केस ये उसको, तो जैसे अनिल अंबानी खुद को बैंकरप्सी हाँ बैंकरप्ट करके इतने बड़े घर में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 86 ऑब्जेक्शंस बाय क्रेडिटर एंड देयर एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन। अब हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जब ये एडमिट करते हैं एप्लीकेशन तो क्रेडिटर्स को भी कॉपी देते हैं। अब क्रेडिटर ने देखा कि भाई उसका नाम है और ये तो क्वालिफाइंग डेट में एक्सक्लूडेड, क्वालिफाइंग डेट में दिया हुआ, तो वो ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई ये तो क्वालिफाइंग डेट है ही नहीं, ये तो एक्सक्लूडेड डेट है ना। तो ऑब्जेक्शन अगर क्रेडिटर को है तो उसके लिए भी क्या करेगा, एनी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 84 टू हुम ए क्वालिफाइंग डेट इज ओड
may within a period of 10 days from the date of the receipt of the order under section 84 object only on the following grounds. पहला, inclusion of a debt as a qualifying debt. ऑब्जेक्ट कर सकता है कि भाई ये जो डेट इंक्लूडेड है ये क्वालिफाइंग डेट है या नहीं है, क्या है, और इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 84. ठीक है, या तो ये कि भाई इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए, या फिर अगर इंक्लूड है तो इसका अमाउंट गलत है. ए क्रेडिटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन टू द रेजोल्यूशन प्रोसीजर. इसके लिए एप्लीकेशन किसको लगा रहा है? आरपी को. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन नहीं लगा रहा. ठीक है, the application under subsection 2 shall be supported by such information and documents as may be prescribed. ठीक है, the resolution professional shall consider every objection made under this section. क्या लिखा? shall. तो जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको कंसिडर करने पड़ेंगे. The resolution professional shall examine the objections under subsection 2 and either accept or reject the objections within 10 days of the date of the application. ठीक है, the resolution professional may examine any matter that appears to him to be relevant to the making of a final list of qualifying debts for the purposes of section 92. तो हो सकता है अब qualifying debts में कुछ change हो जाए जो final list है. ठीक है, on the basis of the examination under subsection 5 or under subsection 6, the resolution professional shall prepare an amended list of qualifying debts for the purpose of the discharge order, make an application to the adjudicating authority for directions under section 90 or take such other steps as he considers necessary in relation to the debtor. ठीक, तो 10 दिन का टाइम है. 10 दिन के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करना और इस ऑब्जेक्शन को ये कंसिडर करेगा और उसको एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा विद इन 10 डेज. ठीक, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो अमेंडेड लिस्ट बना देगा वो क्वालिफाइंग डेट्स. अब मान लीजिए डेटर या क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं है. डेटर कैसे सेटिस्फाइड नहीं है? मान लो डेटर ने एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई ये क्वालिफाइंग डेट है. ठीक है, क्रेडिटर ने कर दिया ऑब्जेक्शन. क्रेडिटर के ऑब्जेक्शन के बाद उसने क्वालिफाइंग डेट को निकाल दिया वहां से, तो डेटर एग्रीव्ड हो गया. या फिर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी भाई ये तो क्वालिफाइंग डेट का अमाउंट ज्यादा है, कम है, जो भी है, आरपी ने प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया इसके हिसाब से, तो फिर इसके पास क्या है? ये जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. द डेटर और द क्रेडिटर हु इज एग्रीव्ड विद द एक्शन टेकन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 86 में विद इन 10 डेज ऑफ सच डेज. तो तीनों में 10-10-10. 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है. 10 दिन के अंदर ही ऑब्जेक्शन फाइल हो सकते हैं. 10 दिन के अंदर ही उसको ऑब्जेक्शन को कंसिडर करना है और यहां पर 10 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन. ठीक है, challenging such action on any of the following grounds, namely that the resolution professional has not given an opportunity to the debtor or the creditor to make a representation, or that the resolution professional colluded with the other party in arriving at the decision, or that the resolution professional has not complied with the requirements of section 86. ठीक है, adjudicating authority shall decide the application referred to in subsection 1 within 14 days of such application and make an order as it deems. Where the application under subsection 1 has been allowed by the adjudicating authority, it shall forward its order to the board and the board may take such action as may be required under chapter 6 of part 4 against the RP. ठीक, अब इसमें अगर एप्लीकेशन अलाउ कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने तो ये जो ऑर्डर की कॉपी बोर्ड को भी भेजेगी. इससे मतलब आरपी ने अपना काम ढंग से नहीं किया है ना. यस सर. तो फिर बोर्ड को भी कॉपी इसकी भेजी. नाउ 88 है जनरल ड्यूटीज ऑफ द डेटर. जिसने एप्लीकेशन लगाई उसकी क्या ड्यूटीज? नेचुरली भाई उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ये सब होगा इसमें, और क्या होना है ना. द डेटर शैल मेक अवेलेबल टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल all information relating to his affairs, attend meetings and comply with the requests of the resolution professional in relation to the fresh start process. Inform the resolution professional as soon as reasonably possible of any material error or omission in relation to the information or document supplied to the resolution professional or any change in financial circumstances
after the date of application where such change has an impact on the fresh start process. पता चले कौन बनेगा करोड़पति में, इनाम जीत गया बाद में, तो ये बता दे। ठीक है। 89 रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन पोस्टर। ये सब जगह ना, यहां पर अब वो 66 वाली फिलॉसफी नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? डेटर और द क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 82 इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। यहां पर इतने नहीं है कि भाई 66% या ये डेटर और क्रेडिटर वर्ड लिखा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक ही डेटर क्रेडिटर हो। ही में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सच रेजोल्यूशन, तो ये अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Adjudicating authority shall within 7 days of the receipt of the application under subsection 1 make a reference to the board for replacement of the resolution professional. बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करे और नया प्रोफेशनल अपॉइंट कर दे। ठीक है, और नए वाला जो है पुराने वाले को सारी इंफॉर्मेशन पास कर देगा और कोऑपरेट करेगा। ठीक। सेक्शन 90 डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एटसेट्रा। अब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, है ना, सेक्शन 85 सब सेक्शन 3 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी? ये रिस्ट्रिक्शंस थी ये सारी। नॉट एक्ट डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, नॉट टू ट्रेवल ओवरसीज, इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर्स रिगार्डिंग, ये सारी बातें। अब अगर इनका कोई वायोलेशन होता है, ठीक है, उसके लिए आरपी क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करें। ठीक। The resolution professional may apply to the adjudicating authority for any of the following directions, namely compliance of any restrictions referred to in subsection 3 of section 85 in case of non-compliance by the debtor, or compliance of the duties of the debtor referred to in section 88. 88 में हमने क्या पढ़ा था? 88 में ये कि वो इंफॉर्मेशन वगैरह इसको देनी है। ठीक है, और कोई मटेरियल एरर या ओमिशन हो गया वो बताना है, कोई चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हो गया वो बताना है ना, ये 88 में हमने पढ़ा था। तो इसके बारे में भी अगर ये जो है कंप्लाई विद नहीं करता, मान लो इन्फॉर्मेशन आरपी ने मांगी, इसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो ये क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस in relation to any other matter under this chapter for which no specific provision has been made. ठीक है, ऐसा भी कोई चीज हो सकती है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो फिर उसके लिए भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना है। 91 रिवोकिंग ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may submit an application to the adjudicating authority seeking revocation of its order made under section 84 on the following grounds. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया? एक ऑर्डर कर दिया था, अब अगर उसको रिवोक करना है तो आरपी एप्लीकेशन लगाएगा। क्या होगा? पहला, इफ ड्यू टू एनी चेंज इन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेटर इज इनएलिजिबल फॉर अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है, और नॉन कंप्लायंस बाय द डेटर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस imposed under subsection 3 of section 85, or if the debtor has acted in a malified manner and has willfully failed to comply with the provisions of this chapter. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज के अंदर एक्ट करेगी। ठीक है, और 14 डेज के अंदर इट में बाय ऑर्डर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ऑन पासिंग ऑफ द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, द मॉरेटोरियम एंड द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस shall cease to have effect. ठीक है, a copy of the order passed by the adjudicating authority under this section shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. ठीक है, और इसकी कॉपी बोर्ड को भी दे देंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री। सेक्शन 92 डिस्चार्ज ऑर्डर। The resolution professional shall prepare a final list of qualifying debts. ठीक है, एंड सबमिट। यहां पर भी जब डिस्चार्ज ऑर्डर हो रहा है तो भी लिस्ट कौन बना रहा है? आरपी। ठीक है, बेसिकली आरपी जो है वो एक किस्म से रीडर वाला काम कर रहा है, जैसे कोर्ट में होता है ना, और तो ये सामने फिर पेश कर देगा जज साहब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स and submit such list to the adjudicating authority at least 7 days before the moratorium period comes to end.
ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड कितना है 180 डेज, तो उससे 7 दिन पहले कम से कम। The adjudicating authority shall pass a discharge order at the end of the moratorium period for discharge of the debtor from the qualifying debts mentioned in the list under subsection 1. ठीक है, without prejudice to the provisions of subsection 2, the adjudicating authority shall discharge the debtor from the following liabilities. एक तो क्वालिफाइंग डेट से डिस्चार्ज हो जाएंगे, दूसरा अगर कोई पेनल्टीज है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ द डिस्चार्ज ऑर्डर। ठीक है, फिर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ द डिस्चार्ज, एंड एनी अदर सम्स owed under any contract in respect of the qualifying debts from the date of the application till the date of the discharge order. ठीक है, तो जो भी क्वालिफाइंग डेट्स है उससे रिलेटेड कोई पेनल्टीज है, कोई इंटरेस्ट है, कोई पीनल इंटरेस्ट है, या एनी अदर सम ओड है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ डिस्चार्ज, तो उससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, the discharge order shall not discharge the debtor from any debt not included in subsection 2 and from any liability not included under subsection 3। तो यहां पर लिख दिया जाता है, डेट वाइज लिख दिया जाता है कि कौन कौन से डेट से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, the discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. A discharge order under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts। मतलब अगर मान लो को बोरोवर है ना, तो को बोरोवर फिर उससे डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जिसके फेवर में डिस्चार्ज ऑर्डर हुआ वही डिस्चार्ज होगा फ्रॉम क्वालिफाइंग डेट्स। Standard of conduct: the resolution professional shall perform his functions and duties in compliance with the code of conduct provided under section 208। तो ये था हमारा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में कुछ कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट है ना। अब हम थोड़ा सा एक कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं, वो सिचुएशन से हम देखते हैं कि भाई किस तरह से ये फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऑपरेट करता है। ठीक है जी, ये नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पर, है ना। यस सर, आ रही है। हाँ, तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब एक मिस्टर कपिल है, ही रन्स ए टेस्ट बर्ड रेस्टोरेंट एज सोल प्रोप्राइटर इन दिल्ली। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम हेवल्स नियर बाई कॉज्ड लॉसेस। नया रेस्टोरेंट खुल गया, उससे इसको लॉसेस हो गए। सप्लायर्स हैं, अनपेड है 90,000 रुपीज। ठीक है, ये 45 to 60 डेज में के ये सप्लायर्स है। तो पहले तो ये बताइए, ये जो सप्लायर्स है ये क्या आएंगे आपके क्वालिफाइंग डेट्स में या नहीं? ये जो सप्लायर्स का पैसे देने हैं आपने 90,000, ये क्वालिफाइंग डेट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? आपने क्वालिफाइंग डेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें क्या लिखता है? सर वो 3 months वाला डेफिनेशन है ना, हाँ 3 मंथ्स, ऐसे नहीं आएगा। हाँ तो ये क्योंकि 3 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, है ना। रेंट एरियर्स 50,000 है, बैंक लोन, सिक्योर बैंक का रेगुलर है, स्टाफ ऑफ 10 है, सैलरी पेड इन हाफ फॉर 4 मंथ्स, तो 4 महीने की सैलरी ड्यू है इसकी। सैलरी बिल है 2.8 lakhs पर मंथ। ठीक है, और हाफ सैलरी दी है इसने पिछले 4 महीने की, तो 3 महीने वाली तो आनी नहीं इसमें, सिर्फ 1 महीने की जो हाफ सैलरी वो आनी, यस सर, है ना। यस सर। उसके बाद में रेस्टोरेंट यूटेंसिल्स इक्विपमेंट्स, इसके पास 50,000 के हैं, और हमें एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी लिखी है वहां पर 20,000, है ना। कपिल्स इनकम पास्ट ईयर 50,000 है, इनकम कितनी होनी चाहिए 60,000। कोर्ट चलान इसका ड्यू है 10,000 रुपीज का। इंटरिम मेंटेनेंस टू वाइफ इसको देनी है 2,000 पर मंथ बाई वे वर्च्यू ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर। तो ये कुछ हमारे पास इन्होंने सिचुएशन दे रखी है। तो एनुअल इनकम की लिमिट कितनी है हमारी 60,000 है और लेस, है ना। तो इसके पास इनकम है 50,000, तो यहां पर तो ये ठीक है, ये तो ओके है। एग्रीगेट एसेट्स हमारे 20,000 या उससे कम होने चाहिए,
डज नॉट एक्सीड अ बर्ड। और यहाँ इसके पास यूटेंसिल्स है 50,000 के, ठीक है। क्वालिफाइंग डेट होने चाहिए 35,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और लेकिन इसकी सैलरी जो ड्यू है ना, अगर हम 1 मंथ वाली भी लें तो 1 मंथ में इसके बाद 1.4 आता है ना, तो 1.4 भी ज्यादा हो जाएगा। ड्वेलिंग यूनिट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ड्वेलिंग यूनिट तो नहीं है, चलो रेंटेड प्रीमिसेस है, ठीक है। और फिर जो सिक्योर्ड डेट है बैंक वाला वो भी एक्सक्लूडेड है। तो अब बताइए ये वाला बंदा एलिजिबल होगा या इनएलिजिबल होगा? ये क्या फ्रेश स्टार्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना सर, नहीं कर, एग्रीगेट नहीं एसेट कर और सकते। क्वालिफाइंग डेट 35,000 से ज्यादा कहा है इसलिए उसने। हाँ। तो आपका जो क्वालिफाइंग डेट है वो 35,000 से ज्यादा। क्वालिफाइंग डेट आपका कितना हो गया? अगर इसी को ही ले लें तो 1.4 लाख तो यही हो गया, 1 मंथ सैलरी हो गई हाफ, है ना, जो ड्यू है। और रेंट भी है, और एसेट्स जो है ये 20,000 से एक्सीड करते हैं, तो ये इज इनएलिजिबल। तो फिर ये कहाँ जाएगा, रेमेडी क्या है? ये ये कहाँ जाएगा? ये कहीं थोड़ी जाएगा। इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी में डीआरटी में करेंगे तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीआरटी। हाँ डीआरटी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि गारंटी तो दी नहीं इसने, अगर गारंटी दी होती तो वहां पर आ जाता एनसीएलटी में। इसने तो लोन लिया हुआ ना, तो बैंक वाला जो है, बैंक वाला तो छोड़ेगा नहीं इसको, बैंक से तो लोन ले रखा है इसने। सर कितना अजीब सा एग्जांपल था, खुद के पास इसकी एनुअल इनकम 50,000 नहीं है और सैलरी दे रहा है ये 2.8 पर मंथ। नहीं तो हो सकता है ना, उसमें क्या है भाई, इनकम वो तो अगला बिजनेस कर रहा है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इनकम ऐसे कई लोग होते हैं लॉस पे भी चलते हैं, कोई जरूरी थोड़ी। ऐसा भी हो सकता है कोई लॉस पे भी चल रहा हो, लॉस पे भी तो लोग बिजनेस चलाते हैं। हाँ सर, वो तो कराते हैं। हाँ, जरूरी थोड़ी अरे कोई इनकम ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेक्शन 83 क्या बोलता है हमारा? सेक्शन 83 अगर हम देखें तो सेक्शन 83 क्या बात करता है? सेक्शन 83 हमारा बात करता है कि रिपोर्ट के बारे में बात करता है। ये कुछ डेडलाइंस है, ये दे रखी है इसमें। ये कौन सा टेस्ट बर्ड रेस्टोरेंट है तो अच्छा, इसमें एक और सवाल भी है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया इसके अंदर कि भाई ये जो मिस्टर कपिल है, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अगर एडमिट हो जाए तो फिर किससे डिस्चार्ज नहीं होगा ये? भाई इसको मेंटेनेंस भी देना है, मान लीजिए कंडीशंस मीट करता ये, ठीक है, मान लीजिए ये एलिजिबल होता, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। तो किस किस कौन कौन से ऐसे डेट है जिससे डिस्चार्ज नहीं होगा? अगर इसको मेंटेनेंस देनी है, मेंटेनेंस से डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? इसको मेंटेनेंस देनी है वाइफ को, नहीं होगा, नहीं वो होगा है मेंटेनेंस। ना, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड डेट में आ जाता है। हम्म, ठीक है। जो सिक्योर्ड बैंक है, सिक्योर्ड बैंक वो का भी लोन है, उससे भी excluded। डिस्चार्ज नहीं होगा, वो भी एक्सक्लूडेड डेट में आ जाता है। यस, एम्प्लॉयज ड्यूज जो पास्ट 3 मंथ्स 3 के ड्यूज मंथ है, का है उससे भी वो भी। डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और कपिल इनएलिजिबल है पोस्ट एडमिशन, मान लीजिए पहले एलिजिबल हो गया, बाद में अगर उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो आरपी क्या करेगा? आरपी विल फाइल ए पिटिशन फॉर रिवोकिंग एडमिशन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल सर्कम। अच्छा, इनकम के लिए पीरियड जो 60,000 है वो कौन सा लेना है आपको? वो लेना है 12 मंथ्स। हाँ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है।
अच्छा, अगर इसकी एप्लीकेशन मान लो एडमिट हो गई, तो क्या इसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है ना? तो कोई भी प्रोसीडिंग्स इसके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं हो सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेट। ठीक है? बैंक क्या एक्शन ले सकता है? द आंसर इज नो। बैंक भी एक्शन नहीं ले सकता, एम्प्लॉयज भी एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है? लैंडलॉर्ड भी एक्शन नहीं ले सकता, और वाइफ भी मेंटेनेंस के लिए नहीं बोल सकते इसको। ये भी ध्यान 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा। रखना है। 6 मंथ के लिए सब रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सब के लिए रुक जाए। अच्छा, इसका सन सेटल्ड है अब्रॉड में और वो उसको बुलाता है, एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो क्या कपिल ट्रेवल कर सकता है बाहर? नो सर, ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ट्रेवल रिस्ट्रिक्टेड कब है? ओनली आफ्टर एडमिशन। एडमिशन से पहले तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एडमिशन के पहले वो कर सकते हैं। वो कह रहा है ना एप्लीकेशन पेंडिंग है। नहीं, फिर जा सकता है। हाँ, तो सेक्शन 85 दोबारा पढ़ लीजिए। सेक्शन 85 क्या बोलता है? कब लगता है मॉरेटोरियम? मॉरेटोरियम में रिस्ट्रिक्शन है, इंटरिम मॉरेटोरियम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये। ओके सर। है ना? हम्म। अच्छा, जो सन सेटल्ड अब्रॉड है, क्या उसके एसेट्स भी डिस्क्लोज करने हैं क्या? नहीं सर, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। हाँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लिखा वर्ड लिख, वो ऐसा गोलमोल सा वर्ड लिखेगा, सेटल्ड अब्रॉड। सेटल्ड मतलब इंडिपेंडेंट है। हम्म। ठीक है ना? तो इज इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। तो इमीडिएट फैमिली में क्या है? स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, इंडिपेंडेंट एडल्ट सन एक्सक्लूडेड। कैन कपिल बी डिस्चार्ज फ्रॉम इंटरेस्ट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 92 डिस्चार्ज ऑर्डर? यस। सो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट, उससे ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, एक मिस्टर राम है, ही इज जॉइंटली लायबल विद कपिल, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कपिल्स डिस्चार्ज ऑर्डर? तो ओनली कपिल विल स्टैंड डिस्चार्ज, है ना? तो अगर कोई जॉइंट लायबिलिटी है तो सेक्शन 92 इसके बारे में क्लियरली बोलता है कि डिस्चार्ज ऑर्डर under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts। ये पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक यस। और केस देखते हैं। इस केस में क्या है? एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है। ठीक है? इसने सिक्योर्ड लोन लिया 50,000 का, कहां से? हिमाचल ग्रामीण बैंक से, फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है? हाउस वॉज वॉश्ड अवे इन फ्लैश फ्लड्स। अब वहां पर तो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो फ्लैश फ्लड में क्या होता है कि मकान ही बह जाते हैं। हम्म। He then borrowed rupees 10,000 from village money lender at the rate of 5% per month। ठीक है? Jumru's wife has gold jewelry worth 1 lakh given by her parents। Jumru owns a goat and 2 hen worth rupees 15,000। तो ये इसके पास एसेट्स। क्या ये फ्रेश स्टार्ट अवेल कर सकता है ये बंदा? क्यों जी? भाई देखो, इसके पास है क्या? इसके पास तो गोट प्लस हैन है, और तो कुछ है नहीं। 15,000 रुपए के इसके एसेट्स हैं। टोटल हम्म। एसेट्स जो है वो आपके 20,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 20 से कम ही है। हम्म। अब वाइफ की गोल्ड ज्वेलरी तो काउंट नहीं होगी यहाँ पर। यस सर। ठीक है? और इनकम भी इसकी 60,000 से कम ही होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये अवेल कर सकता कर सकता है ये। है ना? क्या क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि वाइफ की गोल्ड के लिए? नो सर। नो। क्योंकि उसमें ना ग्राउंड्स दे रखे हैं। हमें लॉजिकली चलना है। 86(1) में ग्राउंड्स दे रखे हैं कि कौन से ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट कर सकता है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं? इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट, या इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो ये दो ग्राउंड्स हैं सिर्फ जिसपे ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है? तो क्रेडिटर कैनॉट रेज ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन वाइफ्स गोल्ड। 86(1) ऑब्जेक्शंस ग्राउंड्स लिमिटेड टू क्वालिफाइंग डेट, इंक्लूजन और इनकरेक्टनेस। तो वाइफ्स एसेट्स आर नॉट जुमरूज एसेट्स। तीसरा, नेचर ऑफ हिमाचल ग्रामीण बैंक। ये जो शेड्यूल्ड बैंक है
ठीक है, तो इट इज नॉट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, hence also a financial service provider but primarily classified as scheduled bank। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाएगा। एग्रीगेट एसेट्स फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस 15,000 के हैं इसके। वाइफ ज्वेलरी इज एक्सक्लूडेड। एग्रीकल्चरल लैंड नॉट ओन्ड, ठीक है ना, तो लैंडलेस लेबर है ये। और बैंक हाउस, इसका जो हाउस है वो डिस्ट्रॉयड है। तो टोटल इसके पास एसेट्स जो है 15,000 रुपए के। और क्वालिफाइंग डेट्स कौन से हैं इसके? बैंक बैंक लोन। लोन जो है वो तो सिक्योर्ड डेट है ना, वो तो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम क्वालिफाइंग डेट। मनी लेंडर का इसका जो लोन होगा कितना है? 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट होगा इसका, ये क्वालिफाइंग है आपका डेट है। ठीक है, तो 10,000 प्लस जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है वो क्वालिफाइंग डेट में आ जाएगा। क्या ये एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन है? सेक्शन 90 सब सेक्शन 2, सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 बोलता है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may apply to the adjudicating authority for directions in relation to any other matter under this chapter for which no specific provisions have been made। तो फिर ये एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो प्राइवेट मनी लेंडर है ये क्या है? ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में नहीं आएगा। ठीक है, रमेश कुमार ए सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर अर्न्स ₹5,000 पर मंथ, 60,000 per year, owns sewing machine 6,000, lives in rented house with wife Leela, aggregate unsecured debts 31,000, no dwelling unit, no prior insolvency bankruptcy, applies under section 80। During verification, creditor reveals Ramesh holds a joint FD of 18,000 with spouse। ठीक है, तो क्रेडिटर कहता है भाई इसके पास तो एक एफडी भी है विद वाइफ। आरपी इंक्लूड्स एफडी इन टोटल एसेट्स। ठीक है, क्रेडिटर कंटेंट्स रमेश इज इनएलिजिबल। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या सिचुएशन आएगी इसमें। एनुअल इनकम इसकी, एनुअल इनकम तो ओके है 60,000। क्वालिफाइंग डेट्स इसके पास 35 के कम है। 35 से कम है। एग्रीगेट एसेट्स एग्रीगेट 6,000 की मशीन और ये 18,000 की एफडी 24, तो वो 20,000 के ऊपर हो गई, तो ये क्वालिफाइंग नहीं होगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गई। हम्म तो बेसिकली अगर जॉइंट एफडी है तो इफ एफडी इज बेनिफिशियली ओन्ड बाय रमेश तो देन वी हैव टू इंक्लूड इट। लेकिन अगर एफडी सिर्फ वाइफ के नाम होती तो देन वी तो हैव टू सर, एक्सक्लूड इट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, जैसे लाइक जस्ट कॉमन, मतलब लाइक कॉमन सेंस के हिसाब से, सपोज उसकी वाइफ भी इंडिपेंडेंट होती है अगर, हाँ जैसे सपोज आज रमेश के पास एक मशीन है, उसकी वाइफ के पास भी एक मशीन होती, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते और उन दोनों ने अपनी एक जॉइंट एफडी बना के रखी होती, तो उस केस में मैं इसको कैसे देखती एफडी को? भाई यहाँ पर तो सिचुएशन ये है कि बेसिकली वही बंदा काम कर रहा है इसलिए उन्होंने उसको इंक्लूड कर दिया। हाँ जी। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर नहीं इंक्लूड होगी, हाँ, तब तो नहीं होता, तब फिर तो नहीं फिर मैं होगी। उस एफडी हाँ को देखती कि मतलब सिंस दोनों इंडिपेंडेंट है तो उस एफडी का 50-50 कंसीडर करके हाँ फिर बिल्कुल 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 वो हाँ। अपना लॉजिक यूज करती वहां पे हाँ जी हाँ जी हाँ। सामने केस फाइल करने के। हम्म ओके। हम्म हम्म, हम्म। मिनिमम डिफॉल्ट कितना है फॉर अप्लाइंग अंडर पार्ट 3? 1,000। 1,000। ठीक है जी। और एलिजिबल वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स 20,000 है। Should joint FD be counted in determining eligibility? Yes, if it is beneficially owned by रमेश। तो एनसीएलटी मुंबई का केस है इसमें अंदर, उसके हिसाब से इसने लिया।
एग्रीगेट क्वालिफाइंग डेट 35,000 है। इन टाइम मोरेटोरियम होगा ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इफ लीला सोनली ओन्स द एफडी तो फिर आपको एक्सक्लूड करना। मीना देवी स्ट्रीट वेंडर इन इंदौर files under section 80 for fresh start. Adjudicating authority admits under section 84. Moratorium begins under section 85. During moratorium, Meena sells her push cart for 5,000 to her cousin without RP's permission. ठीक है। Meena travels to Nepal to visit her brother without AA's permission. RP discovers these facts, these acts, files application under section 91 seeking revocation on ground of non-compliance and malified conduct. Meena argues unaware of restrictions. Travel was for medical reasons. ठीक है। तो let us see the provisions. Section 85(1) क्या कहता है कि moratorium period जो है it begins on date of admission, not filing. ठीक है। तो violation क्या है? The answer is no. ड्यूरिंग मॉरेटोरियम, तो मॉरेटोरियम एक्टिव है, वायोलेशन हो जाएगा इस केस में। सेक्शन 85(3)(b), डेटर शेल नॉट डिस्पोज ऑफ और एलाइनेट एनी ऑफ हिज एसेट्स। इसने क्या किया? शी सोल्ड हर पुश कार्ट 5,000 विदाउट आरपीज कॉन्सेंट। ठीक है। तो वायोलेशन हो गया इस केस में भी, पहले केस में भी वायोलेशन हो गया क्योंकि यहां ड्यूरिंग मॉरेटोरियम किया है इसने। यहां पर भी पहले में भी यस होना चाहिए एनए के बजाय। Debtor shall not travel outside India without AA's permission. तो yes, travel to Nepal without AA's permission. ठीक है। 91(b), RP may seek revocation for non-compliance with restrictions. So RP is correct to apply for revocation. And on 91(3), on revocation, moratorium ceases, creditors' right restored. So creditors can now enforce their claims. ठीक है। After revocation, fresh application is barred for 12 months. So Meena cannot reply for 12 months. RP cannot directly penalize. It must approach the AA. Medical reason is not an exemption from section 85(3)(f. है ना? Only A is prior permission exempt. ठीक है। तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उससे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप मेडिकल ग्राउंड्स पे ट्रेवल कर सकते हो एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये तो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी वाला बाद में करेंगे अभी। तो अभी तक आपका कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। सर सब क्लियर है और ये एमसीक्यू के साथ तो और भी क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैंने मेरे हिसाब से शेयर कर दिया आपके साथ, है ना? हाँ जी। हाँ जी। इसमें मेनली वो कहाँ सवाल पूछता है आपसे? सवाल वो 2-3 जगह पर अटकाता है आपको, अगर केस स्टडी आ चुकी है कई बार इस पर। एक तो ये आती है इसमें कि नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, सेक्शन 80 में लिखा ना, जो सेक्शन 82(g), नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड इन रिलेशन टू हिम इन द प्रीसीडिंग 12 months ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट। ठीक है। तो अगर पिछले 12 महीने में कोई भी ऑर्डर हुआ है, अब ऑर्डर किस किस चीज का हो सकता है ना, वो आपको लिखना है ग्रुप में। भाई ऑर्डर तो किसी भी बात का हो सकता है। मान लीजिए उसने एप्लीकेशन लगाई और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो भी ऑर्डर हो गया, है ना? हाँ, ये हो सकता है अगर उसने एप्लीकेशन लगाई खुद ही विड्रॉ कर ली तो फिर ऑर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर सकती है ना? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 12 महीने में कुछ भी ऑर्डर किया है तो वो नई एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, ये ध्यान में रखना है।
इसके ऊपर कई बार वो सवाल पूछ लेता है और उसको ऐसे ही घुमाता है वो कि भैया आपने अप्लाई किया था और फिर आपने खुद ही विड्रा कर लिया, तो आप फिर कर सकते हो क्योंकि आपका ऑर्डर तो हुआ ही नहीं कुछ अगेंस्ट में। ठीक है जी। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाला फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। इसमें करेंगे तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगी बीच में। तब तक आपका कोई भी वैसे सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी स्टडी से रिलेटेड या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या कुछ है। नहीं सर। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर।